A very good morning, student. How are you all? I hope that you all are fit and fine. All right. So what we have discussed in the previous class, we have discussed about the question answer session, and I hope that you all have done in your notebook as well. So similarly, student, in today's class we are going further with the next question, that is value based question. All right, and these questions also you have to do in your notebook. All right. So as you know, it is very interesting to understand the value based question because it's given as a story form. So we will one by one understand it. What is written here? On cold chilly days, मतलब ठंड का मौसम है. So definitely टेम्परेचर कैसा होगा? लो होगा, बहुत कम होगा टेम्परेचर, and because it's a winter season. Rakesh is a person who tried to open the metallic cap of an ink bottle. ऑलराइट. सो उसने क्या किया? उसने एक बॉटल ली और उस बॉटल की जो कैप है वो मेटल की है. ठीक है, वो उससे ओपन नहीं हो रही. इट्स ही इज ट्राइंग टू ओपन इट. ऑलराइट. एंड ही फाउंड दैट मेटालिक कैप इज स्ट्रक, मतलब मेटल की कैप ओपन नहीं हो रही. इट्स रियली डिफिकल्ट टू ओपन इट. इट स्ट्रक मतलब फंस गया. His mother told him to pour hot water on it. What his mother told pour मतलब डालना. What we have to put? Hot water, garam pani. So his mother told him, you have to pour the hot water on this metal cap for a minute. So he poured hot water on the cap for a minute. He again tried to open the metallic cap. After pouring the water, he again started to open the metallic cap. उसने फिर से उस मेटल की कैप को ओपन करने की कोशिश की. Now the metallic cap opened easily. अब उसने जब ट्राई किया तो उसकी मेटल की कैप क्या हुई? अच्छे से ओपन हो गई. He surprised, वो बहुत शॉक्ड हुआ, and he asked his observation to his elder brother Sameer. उसने अपने बड़े भाई समीर से पूछा. That being a student of science, Sameer explained such things properly. And Sameer, who was the elder brother of the Rakesh, he as a science student, he has explained his very good. All right. So let's start with a question from this value based thing. What are the values displayed by the Sameer? Sameer जो कि उसका बड़ा भाई था, and he has explained the whole process कि ये मेटल की कैप कैसे ओपन हुई. पहले टेम्परेचर लो की वजह से ये क्यों नहीं खुल रही थी, एंड बाद में जब आपने हॉट वाटर किया तो व्हाट हैपेंड. सो व्हाट वैल्यू हैज समीर डिस्प्लेड? समीर डिस्प्लेड हिज थिंकिंग, हिज साइंटिफिक वैल्यू. वो सोचने की पावर, उसकी साइंटिफिक थिंकिंग इज वेरी गुड. ऑलराइट. एंड ही नोज दैट each and every condition behind it some reasons are there. हर एक कंडीशन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिसको आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों हुआ है. So this value has been displayed by the Sameer in this situation. And secondly, that is written, why was it easy to open metallic cap when warmed with water? When warmed with water, we have जब metal की cap basically when the temperature was low, तो मेटल की कैप क्या थी? उसमें फिक्स हो गई थी, आपके बॉटल में फिक्स हो गई थी. हमने ये बात की हुई है मेटल की किसी भी सब्सटेंस को व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, तो वो क्या करता है? हीट की वजह से एक्सपैंड हो जाता है, मतलब थोड़ा आपका लूज हो जाता है, मतलब इट गेट्स लूज व्हेन इट गेट्स गिवन द हीट. बट जैसे ही वो वैसे ही ठंडा होता है वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है. वी हैव डन विद द की एक्टिविटी, जिसमें हमने आपकी लॉक की के साथ बात किया था. व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट इट विल एक्सपैंड, और जैसे ही ठंडा होगा वो अपनी पोजीशन में आ जाता है. सिमिलरली विद दिस कैप, ये कैप जो है मेटल की है. आपने मेटल की कैप पे जब वार्म वाटर डाला, गर्म पानी डाला, तो क्या हुआ बेटा? इस वार्म वाटर ने इसको एक्सपैंड कर दिया. एक्सपैंड मतलब इसको लूज कर दिया, और इजिली उसने कैप को ओपन कर दिया. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट व्हेन वी हैव poured the warm water on the metal cap, it gets expand and cap was opened easily. All right. Come to the third question. What kind of change just takes place in the cap of bottle and why? So reason is here. Metal cap में कौन सा change हुआ? Metal cap shows this change is your physical change. This shows the physical, or you can say this is your reversible change. This is your
रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल मतलब मेटल कैप पे वार्म वाटर डालते उसका लूज होना और ठंडे होते वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होना. दिस इज योर रिवर्सिबल चेंज. एंड मेटल कैप एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब फैलना, एंड कॉन्ट्रैक्शन वापस से सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन अपनी पोजीशन पे आ जाना. ऑलराइट, so this is your metal cap shows the thing. So I hope that this value based question is clear to you everyone. Let's proceed toward a little bit small activity. Alright student, so first of all अब हम करते हैं ग्रुप एक्टिविटी दैट यू हैव टू परफॉर्म इट योर एट होम वेरी वेल. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी का नाम है मेकिंग इनविजिबल इंक. यू हैव टू परफॉर्म इट एट होम. आपको क्या करना है, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर यू विल गेट इंटरेस्टेड. टेक अ लेमन. आपको एक लेमन लेना है, नींबू लेना है, उसको कट करना है. ठीक है. स्क्वीज द लेमन इन अ कप सो एज टू ऑब्टेन लेमन जूस. आपको उसे उसका मतलब लेमन जूस रिलीज कर लेना है. लेमन जूस को क्या करना है, निकाल लेना है. ठीक है. लेमन जूस को निकालने के बाद फिल्टर द लेमन जूस थ्रू अ डबल फोल्डेड हैंकरचीफ. हैंकरचीफ आपको एक हैंकी लेनी है, उसको डबल फोल्ड कर देना है. ठीक है. उसमें से इस लेमन जूस को पोर करके फिल्टर कर लेना है. ऑलराइट, योर लेमन जूस विल गेट फिल्टर्ड. नाउ टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड पेंट ब्रश. अब आपको क्या लेना है, एक वाइट शीट लेनी है, वाइट शीट, एंड यू हैव टू टेक अ पेंट ब्रश. एक पेंट ब्रश लेना है. ऑलराइट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिप द पेंट ब्रश इन लेमन जूस. आपको इस पेंट ब्रश को किस में करना है, लेमन जूस में डालना है. एंड यूज इट टू राइट द वर्ड मैजिक ऑन द वाइट शीट. उस पेंट ब्रश को लेके और इस वाइट शीट पे क्या लिखना है, मैजिक, MAGIC, मैजिक, उस लेमन जूस से. ठीक है. नाउ अलाउ द पेपर टू ड्राई इट इन द सन. उसको सन में ले जाके थोड़ी देर के लिए सुखाना है. You will notice that lemon juice writing disappear. मतलब आपने जो लेमन जूस से लिखा होगा वो पूरा गायब हो जाएगा. ठीक है. Now light a candle and hold the white paper 20 centimeter above the candle. आपने अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इस शीट पे I have written the magic. अब आपको क्या करना है, कैंडल लेके इसकी बैक साइड पे ऐसे ऐसे फ्लो करना है और आपको दिखाई देगा जो ये वर्ड आपका डिसअपियर हो गया था, इट विल रीअपियर. रीअपियर मतलब फिर से दिखने लग जाएगा. ऑलराइट, you will see this image again on this sheet. So this is because in a few minutes the word magic reappears on the paper. ऐसा क्यों हुआ, why is it so? Due to heating the dried lemon juice get charred. जैसे ही आपने ड्राइड जो लेमन जूस को जो आपने जिससे लिखा था और जैसे ही सन की हीट हुई सूखने के बाद ये पूरा अच्छे से रिमूव आउट हो गया. एंड द लेमन मार्किंग अपीयर. और जो लेमन मार्किंग क्या हुआ, आपका अपीयर हुआ. व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दिस, इट वाज वेल इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज. ये आपका जो चेंज था वो इरिवर्सिबल चेंज था. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन से हमने लेमन जूस इस पर डाला, वो डिसअपियर हो गया लेकिन वो वापस से उस फॉर्म में नहीं आया क्योंकि इट वाज द इरिवर्सिबल change. All right. Similarly, now there is one more activity. You can do it at your home. It's very interesting. हमने जब saturated solution की बात की थी, what you have to do, you have to take a beaker. All right. What is written here? You have to take a beaker and dissolve 3 cup of sugar. मतलब थोड़ा सा पानी लेना है, हाफ पानी लेना है और उसमें बहुत सारा शुगर ऐड करना है. ठीक है. At least more than this amount, and you have to use the hot water. इस पानी को आप गर्म कर लो जिससे कि जो भी शुगर है पूरे अच्छे से मेल्ट हो जाए वाटर में. All right. Now suspended a clean thick cotton string in the solution. अब आपको थोड़ी देर बाद क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे कोई भी पेंसिल को रख के या पेन को रख के इसमें एक कॉटन की थ्रेड डालनी है. ठीक है. कॉटन की थ्रेड थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए. Now what you have to do, एंड आपको इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल इसको छोड़ देना है एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज. मतलब कम से कम 1 से लेके 2 डेज आपको इसको
छोड़ दीजिए. Alright. Now what will happen? We know that when the saturated solution is there in which sugar has been dissolved while we have increased the temperature, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया शुगर इसमें पूरा डिजॉल्व हो गया था. लेकिन जैसे ही आपका ये वाटर, जैसे ही वाटर आपका कूल्स डाउन होगा, आपके शुगर के क्रिस्टल वापस से इसमें फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे. एंड दिस वी हैव डन, दिस फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन. हमने टॉपिक भी किया था आपके इस चैप्टर में व्हेन वी वर डिस्कसिंग. दिस इज योर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस व्हेन क्रिस्टल हैज फॉर्म्ड इन द बैक पोजीशन. तो आप जब 2 दिन तक इसको हिलाएंगे नहीं तो आपको इस थ्रेड में अपने आप एक छोटा सा आइस, आपका क्रिस्टल, आपको शुगर क्रिस्टल इसमें अटैच मिलेगा. So this is how you will form on the thread, and you will see that the sugar which we have dissolved in this water, because of the decreasement, because of the fall in the temperature, जैसे इसका टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, लो हुआ, तो आपके शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, फिर से फॉर्म हो गए इस सोल्यूशन में. एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ शुगर इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इन विच क्रिस्टल हैज फॉर्म. तो शुगर हमने पहले मिक्स किया, वो वापस से शुगर की फॉर्म में वापस से क्रिस्टल वापस आ गया. सो ये कौन सा चेंज हुआ, इज इट रिवर्सिबल? नो, वापस शुगर इज केम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो वी कैन से दैट दिस is the example of your reversible change. This is your example of reversible change. So we can say that this was the reversible change. इससे पहले वाली activity irreversible थी. So this is how we have discussed the 2 activities as well. You can perform it at your home. It's very interesting. Okay. So students, let's almost, I think our almost question answer session and everything has done, and we will do the revision again on the next class. So let's go through with the few topics which we have covered in the roundup session. Few students were asking that they have a confusion in the roundup session, so we will discuss again. Like, some changes can be reversed and some cannot be reversed. We have discussed this thing. कुछ changes हमारे सराउंडिंग में रिवर्स हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं, बट कुछ चेंजेस नहीं हो. लाइक वी आर कटिंग द हेयर, हम अपने बाल कट करते हैं, वो वापस से ग्रो हो जाते हैं. ऑलराइट. सो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, क्लोज को ओपन करना, डोर को ओपन करना, क्लोज करना इज अ रिवर्सिबल चेंज. लेकिन अगर आप किसी चीज को बर्न करते हो, जला देते हो, सो देयर इज समथिंग हैपेंड एंड न्यू सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, दिस इज इरिवर्सिबल. वो चीज वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आ सकती, दैट चेंज इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज. Then we have discussed a change may be brought about by heating or using pressure on mixing a substance with another substance. हमने बात की थी कि जब हम किसी चीज को हीट देते हैं या हम फोर्स देते हैं या उसे we are just heating them, so that is also changing in the substances. For example, if I'm as we know that we have discussed that key example of a, अगर हम एक की को हीट देते हैं वो एक्सपैंड होता है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. So this is how a heat, how it is changing how it created the change which is reversible. ऐसे सिमिलरली हमने बात की थी when we are providing the heat, so this solution इनमें sugar is added, it will dissolve, वो पूरे completely solubility increase कर देता है. Alright. इसी तरीके से when we are putting, we are forcing, we are heating, अगर मैं इसको हीट करूँ so definitely it can break it. Alright, so I'm doing the pressure, I'm forcing it. So force की वजह से क्या change आ रहा है? This board can be break. So this is also a kind of change we have discussed. Then changing of ice into water, switching on off electric bulb, magnetizing of iron, dissolution of salt in water. Dissolution मतलब हमने salt का solution जो बनाया उसका dissolution हम कहते हैं. Evaporation of water का evaporate होना, melting of wax, formation of snow etc. are the example of reversible change. ये सारे example किस चीज़ के? They all are example of reversible change. हमें पता है हम आयरन को मैग्नेटाइज करते हैं, वो वापस से आयरन बन सकता है. स्नो जो आपकी फॉर्म हुई है वापस से इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वाटर. ऑलराइट, हमने शुगर को डिजोल्व किया, सॉल्ट को डिजोल्व किया, वी कैन गेट बैक दिस शुगर एंड सॉल्ट इन इट्स पोजीशन.
अब इसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होते हैं, आपने 5th क्लास में पढ़ा था। एक छोटा सा सीड लो, ऑलराइट, उसको आप वाटर के थ्रू उसको वाटर प्रोवाइड करते हो, तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं इसमें से छोटा सा रूट जैसे स्ट्रक्चर निकलता है, बेबी प्लांट निकलता है। सो उसमें क्या होता है आपका, दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। एक बार ये रूट निकल गया, ये वापिस से सीड नहीं बनेगा बेटा, ऑलराइट। सो जर्मिनेशन ऑफ सीड, growth of a baby, rusting of iron, curdling of milk, burning of candle, cooking of food, respiration in animal are the example of irreversible changes। ये changes कभी भी reverse नहीं होते हैं, एक बार ये आपके change हो गए, it cannot be come back on its original shape or position। okay, last है the product when a substance dissolved in water is called solution। for example हमने sugar लिया, इसको इस solution में dissolve किया, so definitely हमारे पास जो ये पूरा mixture आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, solution। so this is what the roundup session is all about। so I hope that we have talked about in this chapter about the reversible, irreversible changes, and this is how our chapter is almost done here। okay, so we will proceed in the next class। see you in the next class, take care, bye bye।